नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संवाद, एक खास मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बात करते हैं दिल से और सबकी सोच से। टुडे वी ब्रिंग यू टू अ कन्वर्सेशन विद अ स्टोरी टेलर हु कैप्चर्स लाइफ नॉट जस्ट थ्रू वर्ड्स बट थ्रू फ्रेम्स। वाराणसी के एक प्रसिद्ध प्रोफेशनल फोटोग्राफर और पॉडकास्ट की दुनिया में जानी पहचानी आवाज मिस्टर रजत गुप्ता हैज़ अ रेयर एबिलिटी टू फ्रीज इमोशन, कल्चर एंड मोमेंट्स इन टाइम। So, thank you इतना बड़ा introduction के लिए. I would thank my parents, I would thank my wife, I would thank my kids, and thank you for inviting me first of all. And it was a lovely experience. पहले बात तो kudos to Sunbeam जो ये initiative करवा रहा है, जिसने at least they have given an infrastructure setup to enable us and enable kids like us to start something like this. Sir, it's an honor for all of us to have you amongst us. So my first question to you is there any one image in your camera roll that you still see and when it speaks every time or it holds a story behind it? Yes, there are many pictures actually because generally what my forte is wedding photography. तो उसमें तो there are many moments which I get to capture. One of the moment is of a bride and a groom. I'll share the picture with you. So you can post it. It was really in a mix of a moment where there are only 12, Bharat wala standing, and in the center is the couple. No one else in the chaos. It was a very good picture. It went into Wedding Sutra also, I suppose. Yes. Okay, so what was the story behind it, like to capture the moment? So basically, there was no story. So when you are in a wedding photography business, there is the character. You can't make them act or react again because it's one take. Everything is one take. So hence, जैसे जैसे हमको moments, decor, views, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस मिलते हैं तो पिक्चर्स अलग अपने आप ही आ जाती हैं. तो मोस्ट ऑफ हाफ ऑफ द वॉर इज इफ़ यू गेट अ गुड डेकोर, इफ़ यू गेट अ गुड फ्लावर वर्क, बाय डिफ़ॉल्ट फोटोज़ और लाइटिंग अगर अच्छी मिल जाए तो फोटोज़ बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी आती हैं. Yeah. So my next question is, बनारस जैसे शहर को कैप्चर करने से आपकी आर्टिस्टिक सोच कैसे बदली? इस शहर में एक नए फोटोग्राफर के तौर पर आपके नज़रिए को कैसे एक नया रूप दिया? Basically, बनारस में when I started photography was in 2015 and उस समय बनारस में वेडिंग फोटोग्राफर थोड़े कम थे तो एंड आई यूज टू पोस्ट पिक्चर्स ऑन फेसबुक. उस समय फेसबुक में कोई फोटोज़ डालता नहीं था, पूरा एल्बम्स. सो दैट इज़ हाउ आई पिक्ड अप इन बनारस. एंड सेकेंडली, बनारस के बारे में ये खासियत है कि बनारस के घाट पे आप चले जाइए, यू गेट टू सी सो मैनी थिंग एट वंस, सो मैनी ब्यूटी, सो सच हेरिटेज दैट वी हैव गॉट हियर. एक्चुअली हमको ऐसा लगता है कि बनारस वालों को बनारस की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम पता होती है. बाहर से टूरिज्म ज़्यादा आके अभी मैं देख रहा हूँ जैसे होता है करेंटली. तो जैसे हम और आप घाट डेली नहीं जाते हैं, बट जो जिसको फैसिनेशन है वो घाट के लिए, लेकिन जो घाट की लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ उसमें बहुत डिफरेंस है. And when we do so many shoots at Ghat, basically we have shot weddings, we've done pre-wedding shoots, we've done commercial work in Ghats. तो वहाँ पे आप जब सुबह से 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक शूट करते हो तो you get to experience that Ghat side of your life, which is so quiet. कोई ट्रैफिक की आवाज़ नहीं, सिर्फ बोट की आवाज़ चल रही है, उसकी स्टीमर की आवाज़ आ रही है. तो उसकी अलग ही फील है घाट की एक्चुअली में. So sir, what was the challenge when you faced while shooting the wedding shoot over there? Challenges basically क्या है, because it's a heritage property. For example, we shot weddings in Brijrama, we have shot weddings in Guleria Koti. So in these two property, these two are beautiful properties. पहले तो और दूसरी बात घाट पे होने से क्या है कि because of the rules and regulation they cannot modify the structure so much. So rooms are small, people are so many in weddings. सो जो ऐसे जगह में रिस्ट्रिक्शन हो जाता है स्पेस का बहुत ज़्यादा. सो व्हेन वी शूट, सो वी ट्राई टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द, जैसे हम जिस एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हैं तो वी यूज़ वाइड एंगल लेंसेज इंस्टेड ऑफ मोर जूम लेंसेज, बिकॉज हमको पता है कि जब रूम छोटा है तो जैसे अभी भी हम वाइड एंगल पे शूट कर रहे हैं तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे लोग एक संग आ सकते हैं कमरे में. तो एक तो ये दिक्कतें आती हैं कि वी गेट टू गेट लेस स्पेस. दूसरा ये है कि घाट पे व्हेन वी शूट प्री वेडिंग्स एंड स्टफ, उसमें ये इशू आता है कि घाट पे इतना भीड़ हो गया है कि लगता ही नहीं है कि कहीं कोई जगह हो रही है. अब देयर इज फिक्स स्पॉट एट घाट जहाँ प्री वेडिंग शूट ही चल रहे हैं. आप जाओगे डेली आपको 10-15 बोर्ड दिखेंगे प्री वेडिंग शूट होते हुए वहाँ पे.
इन टुडेज रील ड्रिवन एरिया जो है लाइक पर्सन जो होते हैं वो कैमरा के अकॉर्डिंग अब अपना फेस बनाते हैं, रियल आता नहीं है, Correct. रैंडम नहीं आता है, तो बट देयर आर स्टिल सम स्टोरीज, तो डू यू थिंक कि वो स्टोरीज डीप इम्पैक्ट अभी भी देती हैं या सिग्निफिकेंस होल्ड करती हैं कि सो नहीं? बेसिकली इवन आई एम ऑल्सो एडिक्टेड टू रील्स एंड मेरी वाइफ से बहुत लड़ाई भी होती है इस चक्कर में, बट द ओनली पॉइंट इज सी रील्स एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट दोनों देखा जाए तो रील्स का अपना मार्केट है, बिकॉज रील्स की रीच बहुत ज़्यादा है इस करेंट टाइम में, और लॉन्ग फॉर्म में टू गेट सब्सक्राइबर्स, लॉन्ग फॉर्म इज़ व्हाट, यूट्यूब इज़ अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, बट यूट्यूब में टू बिल्ड द सब्सक्राइबर बेस इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उसमें इंस्टाग्राम पे तो क्या आप वायरल होकर आपके फॉलोअर्स तो बढ़ जाएंगे, बट यूट्यूब में आपको बार बार देखने के लिए आपका कंटेंट उतना वर्दी होना चाहिए कि आदमी सब्सक्राइब करे आपको बार बार देखने के लिए. सो इसलिए आई फील लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म का दोनों का कॉम्बिनेशन करना ज़रूरी है. आप एक लॉन्ग फॉर्म बनाओ और उससे मल्टीपल शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ एडिट करके डालो, ताकि आपका उससे ट्रैक्शन आए और वो वीडियो डायरेक्ट हो सीधे यूट्यूब के आपके लॉन्ग फॉर्म पे. तो उससे रील्स में भी व्यूज़ मिलते हैं इंस्टाग्राम से, और इंस्टाग्राम को जब आप उसमें लिंक शेयर करते हो कि रीडायरेक्ट करते हो, वो यूट्यूब पे ले जाता है. So sir, how do you manage that consistency level being in YouTube and then from Instagram? So उसमें क्या होता है बेसिकली व्हाट हाउ आई डू इन पॉडकास्टिंग ऑल्सो इज दैट कि हम एक लंबा वीडियो शूट करते हैं अराउंड 1.5 आवर्स का, जैसा कंटेंट मिलता है. उसके बाद उस कंटेंट को हम लोग, क्योंकि हम 3 एंगल से शूट करते हैं, तो वी मेक श्योर दैट 3 एंगल का फ़ायदा ये होता है कि अगर मुझे कुछ अब्रप्ट लगा, बीच में कट आया, तो आई कैन मैनेज मल्टीपल कैमराज. लेकिन अभी अगर मैं कुछ क्लैप कर दूंगा तो वो मैनेज नहीं हो सकता इसमें. दूसरा ये फ़ायदा होता है कि हम लोग जब भी शूट करते हैं तो वी मेक श्योर दैट हम इतना हेड स्पेस छोड़ें शूट करते समय कि उसको हम ऐसे करके लंबे में भी ले सकें. क्योंकि इफ़ यू शूट वेरी क्लोज अप वीडियो, उसको हम लॉन्ग फॉर्म में, रील फॉर्म में नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई वी लीव लिटिल हेड स्पेस, क्योंकि हम, और दूसरा बात, अगर 4K में शूट करेंगे तो आप यू कैन क्रॉप अ लॉट. तो 4K का फ़ायदा ये होता है कि आप जितना भी क्रॉप कर लेंगे आपका फ्रेम ख़राब नहीं होता. सो द की फैक्टर टू शूट अ गुड पॉडकास्ट एपिसोड इज़ मल्टीपल कैमरा होने ही चाहिए, तभी वो वर्दी लगेगा देखने में. दूसरा ये है कि लाइटिंग अच्छी है, लाइटिंग जैसे आपने लगाई है, परफेक्ट लाइटिंग. तीसरी कि माइक अपने बेस्ट ले लिया. चौथा ये है कि अब जब ये सब शूट कर लिया हमने इसको लॉन्ग फॉर्म में, अब इसको हम धीमे धीमे चॉप ऑफ करेंगे अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स. अब वो टॉपिक, जैसे सपोज हमने कुछ बात करी, उसका टॉपिक आपने देखा कि ट्रेंड ये आजकल बनारस के बारे में XYZ चीज़ कर रही है, तो अब आपने बनारस की रील काटी, और बनारस की रील काटने के बाद आपने उसको यूट्यूब पे डाल दिया, यूट्यूब शॉर्ट्स पे. और यूट्यूब शॉर्ट्स पे ऑप्शन होता है कि जब आप उसको क्लिक करोगे तो नीचे लिखा आता है कि रीडायरेक्ट मी टू द लॉन्ग वीडियो, जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो फिर लॉन्ग फॉर्म में जाता है. एंड सेम हैपेंस विद इंस्टाग्राम ऑल्सो. आप इंस्टाग्राम पे डालोगे लिंक एंड देन यू ऐड योर बायो में आपने यूट्यूब वीडियोस डालते जाओगे, तो पीपल उससे आएंगे लॉन्ग फॉर्म में. So like उसी वजह से व्यूज और रीच बढ़ जाते हैं उसके करेक्ट. बाद. और दूसरा ये है जो हमने अब तक सीखा है, जो अपने पॉडकास्टिंग लाइफ में बेस्ट, मेरे जो मतलब गेस्ट कह लो, या अब तो शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑल्सो. सो तान्या मित्तल इज़ वन ऑफ द, जिसको मैंने किया था, वो बहुत अच्छा गया था, टचवुड. और अभी भी जब भी कुछ डलता है तो उसके अच्छे और ऑर्गेनिक रीच आती है. तो उस केस में हमने ये सीखा था कि उन्होंने हमको ये सिखाया कि ऑलवेज पुट कंटेंट विच इज़ शेयर वर्दी. आप जब देख रहे हो, इफ़ यू आर सेंडिंग इट टू योर फ्रेंड, इट शुड बी शेयर वर्दी या रिलेटेबल होगा, तभी आप शेयर करोगे. सपोज मैंने कोई बहन भाई की लड़ाई का वीडियो रील देखी, सो आई विल इंस्टेंटली सेंड इट टू माई सिस्टर, लेकिन मैं तभी भेजूंगा ना जब वो रिलेटेबल फील करूंगा. सो आप रिलेटेबिलिटी ढूंढो, सी वॉट यू आर फॉलोइंग, सी हाउ यू आर बिहेविंग योर सेल्फ इन द वे यू स्क्रॉल योर रील्स. उससे क्लियर हो जाता है कि आपको एक्चुअली डालना क्या है. तो तान्या मित्तल के एपिसोड में ये हमने सीखा था कि उन्होंने मेरे को सिखाया कि आप एडिट और आपको शूट एक्चुअली में करना कैसे है. टॉपिक के क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चंस मैंने जो प्रिपेयर किए थे, और उनके आंसर इतने फास्ट आ रहे थे, इतने, मतलब मैं आई वाज शॉक्ड कि यार एपिसोड जल्दी खत्म तो नहीं हो जाएगा, इतनी जल्दी आंसर दे जा रही हो. तो बट शी वाज सो स्मार्ट, शी रियली, मतलब वो क्या मेहनती लड़की है. और अब तो खैर बिग बॉस में भी शी वाज देयर, तो दैट वाज अ गुड थिंग. हाँ सर, यू मेंशन रिलेटेबल कंटेंट लाइक होने चाहिए. तो सर लाइक यूजुअली हम देखते हैं कुछ कंटेंट्स बहुत यूज हो जाते हैं या वो बहुत पुराना, तो उस चीज़ को डिफरेंट एंगल से हाउ यू टेक. हाँ, सो अब उसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं इसमें, कि अगर आपका कोई कंटेंट पुराना हो गया है तो उसको पूरा तो डालना भूल जाओ, क्योंकि पुराना आपको खुद फील अगर हो रहा है कि आउट ऑफ द ट्रेंड, तो आप मत डालो. ओनली ट्राई टू चॉप पीसेज ऑफ दोज कंटेंट जो आपको लग रहा हो कि आज भी रेलिवेंट है, या फिर
मसाला वर्दी। इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्ट्रगल और सौरो चलता है, जॉय नहीं चलता है। बहुत रेयरली आई हैव सीन कि जॉय बहुत वर्क कर रहा हो। तो ट्राई टू मेक इट लिटिल स्पाइसी, बिकॉज मानिए ना मानिए, पीपल आर लुकिंग फॉर थिंग्स विच आर मोर स्पाइसी ऑल्सो। मतलब कि कुछ उसमें गॉसिप होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो आपको उसको हुक डालना पड़ता है। ऐसे हुक कहते हैं ना, हुक पॉइंट होता है किसी भी रील का, तो हुक पॉइंट सबसे पहले डालना चाहिए एडिट में, और उसके बाद कुछ डालना चाहिए। Okay. So my next question is, you have spent years in telling stories through a silent lens. What was the biggest challenge in shifting your storytelling from a visual anecdote to a verbal conversation? Like from being a photographer, then coming to the point of podcast and सो anchor. फोटोग्राफी मैं करता था और पॉडकास्टिंग में बहुत देखता था, बिकॉज यूट्यूब पे एवरीवन फील्स कि अब जब दिन भर मोबाइल पे लगा है तो आदमी कुछ इधर ही उधर देख रहा होगा, बट एक्चुअली में जब मैं देखता था पॉडकास्ट, एंड आई गॉट अ चांस टू मीट रणवीर अलाहाबादिया व्हेन ही वाज इन बनारस। सो दैट इज़ हाउ आई, एंड उसको मैं फॉलो बहुत पहले से करता था उनको। तो इवेंचुअली व्हेन आई मेट हिम, तो देन आई टोल्ड हिम कि अब मैंने सोचा हुआ था कि व्हेन आई मीट यू आई स्टार्ट अ पॉडकास्ट। सो माई वाइफ टोल्ड मी कि तुमने प्रॉमिस तो किया था, अब जब वो मिल ली हो तुम, तो अब तो यू हैव टू स्टार्ट नाउ। सो देन आई थॉट चलो लेट्स स्टार्ट। और प्लस क्योंकि मेरा ये बैकग्राउंड था, तो आई समहाउ हैड अ एडवांटेज कि भाई मेरे पास टीम एक रेडी थी। मेरे को ये पता था कि लाइटिंग क्या जानी चाहिए, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। बट अब डिफरेंस क्या थी कि पॉडकास्टिंग में अब तक हम हमेशा लेंस के पीछे थे, तो आई यूज्ड टू आस्क पीपल कि ऐसे बिहेव करो, ऐसे बैठो, ऐसे मत करो। अब लेकिन जब वो खुद पे गाज गिरी तो लगा यार शिट यार, ये तो कितना ऑकवर्ड हो जाता है किसी को बोलना, यार आप ऐसे ही बैठो 1 घंटा, आप हिलो ही मत, आप हंसते रहो। सो देन एक्चुअली जब सर पे पड़ी तब लगा। और आज भी जब मैं पॉडकास्ट में आया हूँ, तो ये भी मेरे लिए पहली बार है कि मैं पॉडकास्ट पे आया हूँ। तो मुझे और स्ट्रेस था कि यार ये तो अब ये भी मेरा पहला हो रहा है कि यार ये भी गाज गिर के कि दूसरों को सामने बुलवाना। बिकॉज पॉडकास्टिंग में व्हाट आई फील इज 80% ऑफ द एपिसोड इज ऑन द गेस्ट, 20% एपिसोड इज ऑन यू। क्योंकि आधा बात तो आपका, तो आप 10 मिनट ही बात करोगे, 40 मिनट्स तो गेस्ट की ही कॉन्वर्सेशन है ना। तो अगर वो इंटरेस्टिंग होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे व्यूज़ आएंगे, लेकिन अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट व्यूज़ आप कितना भी उसको स्पाइस अप करने की कोशिश करो, वो नहीं आएगा। पहले एक टाइम था कि लोग रील डालते थे, रील के बीच में बहुत सारे क्लिक की आवाज़, और वो अब वो धीमे धीमे कम होता है। आप देखोगे पहले एक टाइम पे इतना पीक हो गया था कि जो कुछ भी देखो तो ऑडियो से पहले क्लिक 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 की आवाज़ आती थी, अब वो बहुत कम हो गया है। और दूसरा, अब स्लो मोशंस खत्म हो गया है, स्लो मोशन वीडियोस खत्म हो गए, एंड रियल टाइम ऑडियो इज मोर वर्किंग। हाँ फेज में। सर यू मेंशन व्हेन यू मेट रणवीर सर, सो ही वाज एन इंस्पिरेशन, तो उनके बाद से आपने प्रॉमिस किया था पॉडकास्ट शुरू करने का। सर इफ इन दैट केस, लाइक उस टाइम तो यू वर हैविंग रिसोर्स अवेलेबल विद यू, अगर उस टाइम आपके पास रिसोर्स नहीं था एंड टू मेक फुलफिल ऑफ दैट प्रॉमिस, देन व्हाट विल बी? हाँ, तो देखिए पहली बात तो पॉडकास्टिंग इट लुक्स वेरी फैंसी, हाँ, इट इज़ नॉट वेरी फैंसी। और ऑल्सो पॉडकास्टिंग को फाइनेंशियली वायबल करना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि इन अ सिटी लाइक बनारस लोगों को इम्पोर्टेंस है, बट उसको वैल्यू, उस जो आपकी वैल्यू एक्सपेक्टेशन है जो दूसरे की, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। एंड ऑल्सो अब दूसरी बात ये भी है कि इट इज़ चिकन एंड एग वाली बात है कि पहले आप या तो पैसे खूब मांग लो, लोग कम आएंगे, ठीक, या फिर आप इतनी अच्छी रीच बना लो ताकि लोग आपके पास जाएं। तो अब इसमें जनरली पॉडकास्टिंग, मेरा मानना है शुरुआत में मैंने और अभी भी मैंने ये रूल बनाया हुआ है कि मोस्टली आई ट्राई टू डू इट अ नॉन स्पॉन्सर्ड वे, बिकॉज तभी आई हैव द पावर टू एडिट, आई हैव द पावर टू से कि मुझे तो ये डालना ही डालना है पूरा। अब अगर कल को मैं आपसे पैसे ले लूँ और मैं बोल दूँ यार कि ठीक है, आई हैव टेकन XYZ अमाउंट फॉर एन एपिसोड, अब उस चक्कर में वॉट एवर यू वुड वॉन्ट, आप चाहोगे तो वो डलवा सकते हैं, बिकॉज दैट ऑफ कोर्स देन द पर्सन हैज़ अ राइट टू एडिट कैसे चाहिए उनको। उस केस में मेरी ऑडियंस पे अनफेयर हो जाता है फिर वो। तो इसीलिए आप बाहर भी देखोगे तो जितने भी बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल राज शमानी, रणवीर, you get to see it is a sponsored podcast or it is an organic podcast, seeing the guest, आपको दिख जाएगा कि वो स्पॉन्सर्ड है। और प्लस यार उनके पास तो इतनी बड़ी टीम है, आप इतने बड़े एडिटर इतने बैठाए हुए हैं उन्होंने कि वो स्पॉन्सर नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा भाई। तो इसका मिक्स होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इस पर सस्टेन कर जाते हैं और कुछ लोग इस पर नहीं कर पाते हैं। Okay. ये डिफरेंस है। So my next question is,
On the Rajat Gupta show, you host a wide range of guests from advocates to experts. How do you balance the curator in you who wants a structured story as an anchor and the anchor in is you who wants to follow sudden and spontaneous spark? See, I always believe कि पहले जब पॉडकास्ट अब इतने सारे भी आ गए हैं, देर आर सो मेनी पॉडकास्ट दैट अगेन इट्स अ पूल एंड टू बिकम मतलब बेस्ट इन द पूल इज़ वेरी डिफिकल्ट. ठीक, तो इधर योर कंटेंट हैज़ टू बी इधर फनी, विटी और वेरी सीरियस, स्पिरिचुअल, तभी वो चलेगा. जनरल कॉन्वर्सेशन नहीं कोई देखेगा अनटिल अनलेस कोई मुझे या किसी और को देखने आए. तो फर्स्ट पार्ट तो हम यही मानते हैं कि अगर उसको हमको सही करना है तो इट हैज़ टू बी फनी. और शुरुआत मेरे को ना कॉन्वर्सेशन करना पसंद है. मैं ऑफ द कैमरा बहुत करता था. आई थॉट वाई नॉट स्टार्ट विद इट. तो मैंने अपने एडिटर के संग ही पहला एपिसोड शूट किया था, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड एडिटर, ही इज़ वेरी गुड वीडियोग्राफर ऑल्सो. तो उसके संग मैंने शूट किया. वो 1 घंटे का एपिसोड करने में हम लोग को 8 घंटे लगे थे, बिकॉज हमको लाइटिंग चेक करनी थी कैसे करनी है, माइक में 10-15 चेक किए, लोकेशन चेंज करी, फेस पे आ रहा है नहीं आ रहा है, लाइट क्या नया हो सकता है, अकूस्टिक थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बाहर ड्रिल मशीन चल रही थी. तो वो सब उस समय समझ में आया कि इट इज़ नॉट वेरी ईजी टास्क. वो दीवारें में भी दिक्कत है, अगर जब तक ये पैनल नहीं लगेंगी तब तक आवाज़ भी नहीं आएगी सही. और जो सामने वाला ऑडियंस है ना, उसको ये नहीं पता होता. और प्लस आज के टाइम में यार अब तो लेपल वो माइक्स आ गए हैं 700-700 रुपये की पोट्रॉनिक्स के, डिजिटेक के. तो एवरीवन हैज़ दैट माइक और उसकी भी क्वालिटी ख़राब नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है. तो यही डिफरेंस है. तो अब कंटेंट या तो उस लेवल का बना लो कि आदमी आपकी क्वालिटी देखने आ जाए. तो हम तो ये देखते हैं कि मतलब इट हैज़ टू बी गुड, पीपल विल लाइक यू. इफ़ इट इज़ नॉट गुड, कितना भी अच्छा कर लो वो नहीं होगा. So sir, do you prefer being a scripted anchor or like random? स्क्रिप्टेड, देखिए अभी भी जब मैं यहाँ पे आया तो आई जस्ट आस्क्ड यू कि क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं. सी द पॉइंट इज, जैसे मैं हूँ या मेरे पॉडकास्ट पे कोई गेस्ट है, वो डेली ये काम नहीं कर रहा है. और एवरीवन इज नॉट वेरी कैमरा फ्रेंडली ऑल्सो. कैमरा आते आदमी अच्छा ठीक है, अच्छा और बताइए. तो ये सब क्या होता है कि जिसकी आदत नहीं उसको दिक्कत है. सो एटलीस्ट हम ये नहीं कहते कि आप पूरा क्वेश्चन लिस्ट ही बता दो मुझे, लेकिन आई गिव यू अ फ्लो कि हम ये बात कर सकते हैं. सो एटलीस्ट यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द टॉपिक. अब आपको मैं बोल दूं कि आपने सोचा था आपकी बचपन की बात याद है आपको, अब आप सोच रहे हो बैठ के 10 मिनट तक बचपन की बात क्या थी. अब वो 10 मिनट तो खत्म हो गया. और प्लस क्या है, आप फिर 10 लोगों को कॉल करोगे, अच्छा क्या हुआ था बताना यार. तो मतलब दैट ब्रेक्स द फ्लो. और ब्रेक द फ्लो से याद आया, मैंने एक पॉडकास्ट एपिसोड किया था विद शटर डाउन. लक्ष्य चावला करके बंदे हैं, वो अ डैम गुड फोटोग्राफर. उनकी कंपनी का नाम है शटर डाउन. वो भी वेडिंग फोटोग्राफर हैं, सोनी के मेंटोर हैं. तो हम शूट करने गए, 1 घंटा हमने इतना अच्छा पॉडकास्ट शूट किया इन दिल्ली एट हिज ऑफिस. सब हो गया. जब हमने कट बोल दिया, वहाँ एडिटर वही अगेन विशाल बैठा हुआ था सामने, और विशाल कहता है भैया बाकी सब ठीक था, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ. मतलब आई वॉज शॉक्ड. अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. इवन ही वॉज वेरी स्वीट एनफ, लक्ष्य वॉज वेरी स्वीट एनफ कि बोला यार, अब मैं और लक्ष्य दूसरे चेहरा देख रहे हैं, ये कैसे कर सकता है कोई. और विशाल तो ऑलरेडी डूब के मर चुका था टेंशन में. So we decided we take a half an hour break. We had lunch together and then we resumed again. मतलब वो हमने 1 घंटे का एपिसोड 4 घंटे लगाए शूट करने में. और फिर सेकेंड टाइम में अच्छा है एपिसोड, उसके व्यूज भी अच्छे आए. बट द ओनली पॉइंट इज सेकेंड टाइम में वो जो कॉन्वर्सेशन की रिएक्शन होता है ना, वो नहीं आया होगा. अब जैसे आप मुझे बोलोगे दोबारा क्वेश्चन पूछो, तो अब मेरा रिएक्शन अलग होगा. मेरी बातें ही अलग हो जाएंगी, क्योंकि वो जो स्टोरी लाइन चल रही है वो चेंज हो गई. So my last question is, which of your podcast episode has been the most memorable for you and why? तान्या मित्तल. नो वे. मतलब उसके अलावा तो कोई एपिसोड हो ही नहीं सकता मेरे लिए. मतलब और प्लस जब कोई ऐसा गेस्ट, और आज मैं उनको देखता हूँ, शी वॉज फेमस देन ऑल्सो, शी हैड 1 million सब्सक्राइबर्स तब भी, और अभी शी हैज़ 3 or 4 आई थिंक. तो मतलब तब से आज तक, एंड शी स्टिल हम्बल. व्हेन शी केम बैक, सो आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हर ऑल्सो ऑन द फोन. तो मतलब मुझे लगता है अभी भी है, मतलब डाउन टू अर्थ ही है वो. जैसे पहले थी अभी भी वैसी ही हैं, और अभी आई थिंक वो वैसी ही रहेंगी. So sir, like उनके podcast में what you felt was? So उनके पॉडकास्ट में आई अंडरस्टूड कि आप कितने प्रिपेयर होकर चले जाओ. सामने वाला गेस्ट जब आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल मिल जाए तो आपको कितनी जल्दी चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ती. शी वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस, और मैं सोच रहा था शिट यार ये हाँ फिर तो ऐसा होगा, तो मैं इसको डाइवर्ट तो कर लेता था. यही आज पॉडकास्ट में सीखता है आदमी. बट
एट द पॉइंट ऑफ टाइम आपके मन में उस क्वेश्चन पूछ भी रही हो, आंसर भी चल रहा है कि दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा मैं इसका आंसर। बट उनकी स्टोरीज काफ़ी रिलेटेबल थी, उनका कंटेंट इतना ट्रेंड हुआ है, इतना वायरल, मतलब द मोमेंट आई अपलोडेड हर रील्स, एक टाइम था कि जैसे मैंने अभी 8:10 पे रील डाली और 8:11 पे देयर वर अराउंड 2400 नोटिफिकेशंस कि इट हैज़ बीन शेयर्ड, इट हैज़ बीन सेव्ड। क्योंकि मैं आपको अभी दिखाऊंगा उसके उनके इनसाइट्स, उनकी कोई भी रील आप डाल दो, इट हैज़ टू वर्क। पता नहीं वो कैसे, क्या मैजिक है, कौन सी उनकी ऐसी फॉलोइंग है, लेकिन है। तो वो हमने देखा, और प्लस क्या उससे हमको सीखने को मिला कि उनसे मुझे सीखने को मिला कि उन्होंने हमको सिखाया कि जब आप टीजर कोई या कोई आप रील काट रहे हो तो ऑलवेज पुट अ हुक लाइन फर्स्ट। सो दैट इज़ हाउ शी टॉट मी कि कुछ उन्होंने अपनी लाइन्स में, जैसे कुछ उनकी रील्स में डालता था तो उन्होंने समझाया कि इसको पहले डालो और इसको बाद में डालो तो रील ज़्यादा चलेगी। एंड इट एक्चुअली हैपेंड। एक मैंने अपने मन से डाली, वो नहीं चली, एक जो उनके कहने से डाली वो चल गई, तो मैंने पुरानी हटा दी फिर। लेकिन तो ज़्यादा वाली ही दिखेगी आपको अभी। So now we have rapid fire round. My first question is capturing in black and white or in color? यार आई एम नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट पर्सन, आई एम अ मोर ऑफ अ कलर So पर्सन। फिर black and white कभी-कभी एस्थेटिक भी दिखा देते हाँ हैं। कभी कभार। और दूसरा हम लोग की लाइन में वेडिंग फोटोग्राफी, मतलब वेडिंग फोटोग्राफी पॉडकास्टिंग में तो नहीं, वेडिंग फोटोग्राफी में ब्लैक एंड व्हाइट तभी करते हैं जब फोटो खराब हो जाए, लाइट अलग आ जाए तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, रेड ब्लू लाइट को ब्लैक एंड व्हाइट करके सही कर देगा वो। Silence या background music? नहीं, ऑफ कोर्स बैकग्राउंड म्यूजिक। What type of background? आई एम मोर ऑफ अ करण औजला फैन, तो उस तरह की ट्रेंड वाइब मेरे को चलती है। Okay. सुबह के घाट या रात की गलियां? सुबह के घाट आर बेटर, रात की गलियां भी ठीक है, बट सुबह के घाट इज मच बेटर। आई फील सुबह इज बेटर, सुबह का घाट तो बेटर। Okay. One word to define your journey and why? जर्नी फोटोग्राफी की तो वाइफ की वजह से शुरू हुई थी। वाइफ ने ही पहला ब्रेक दिलवाया था कि उसने, सो आई यूज्ड टू परस्यू फोटोग्राफी इन फोटोग्राफी क्लब्स इन कॉलेजेस जैसे होता है, तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी एमिटी वगैरह में करता था। उसके बाद वाइफ ने कहा कि कुछ करते हो तो कमा भी लो इससे, मतलब कुछ कर रहे हो तो फिर उसने ही जोमेटो में एक फ़र्स्ट ब्रेक दिलवाया मेरे को। जोमेटो में तो 500 रुपये उसमें मिले थे फॉर फूड फोटोग्राफी, और वो भी सड़क का ठेला होता है ना। उसने कहा जो लोकेशन है और चले गए फूड शूट करके, मज़ा आया। तो पहला पैसा आया 500, ऐसे 10 किए तो 5000 आ गए। तो वो पहला पैसा जब कमाया तब समझ में आया कि इसमें है कुछ, तो मज़ा आ रहा है। फिर करते करते जब वापस बनारस आए तो फैमिली बिजनेस था मतलब हम लोग का, तो पापा ने कहा कि ठीक है यू कैन ऑल्सो परस्यू, अपना शौक भी करो पूरे। सो उन्होंने तब अलाउ किया। उसके बाद हमको मज़ा आने लगा। वेडिंग फोटोग्राफी ऐसी चीज़ थी कि फर्स्ट वेडिंग जिसने हमको ट्रस्ट किया, आई एम स्टिल थैंकफुल टू देम, बिकॉज कोई पहली बार किसी वेडिंग फोटोग्राफी को पहली जो फोटोग्राफी ब्रेक मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है उसकी, क्योंकि किसी को अपना वेडिंग का डे कोई नहीं छोड़ता मतलब। सो आई मेड श्योर कि मैं अपने उस दिन तो मेरे पैसे एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपका काम अच्छा हो। सो दैट इज़ अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। और दूसरा ये है कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट कभी कभार हो जाती है, बट टेक इट ईजी, बहुत टेंशन नहीं लेने का, बिकॉज आप जितना सोच रहे हो सकता है दूसरा आपके बारे में इतना ना सोच रहा हो। द मोर यू थिंक द मोर यू गेट इन ट्रबल। Okay. Rajat Gupta as a podcast anchor or Rajat Gupta as a photographer? As a photographer also and as a podcaster bhi. Anyone. Then as a podcaster. A photographer also. Photographer is my first choice. Okay. Because that is what made me known in Banaras. Okay. So one last question for the audience, especially for the students. Being as a photographer and a podcast anchor, you need to go for best content. So for the ones for new content, like the students or the youths who are going for a new content creation, whether on a social media or as in real life as a passion of theirs. So what is that one thing they want to get of clarify? Or what is that one thing कि उनको वो चीज़ लेके चलनी है being as a good content? See, what I feel is, पहली बात तो प्लीज़ डोंट बाय हेस्टी DSLR कैमराज जो सबके शौक होते हैं, एक 50mm 50mm लेंस निफ्टी 50 लेके। तो द मेन पार्ट इज़, पहली बात तो आजकल फ़ोटो से ज़्यादा वीडियो चलता है, ये फैक्ट है। सो अगर फोटोग्राफी का शौक है, स्पेसिफिक फोटोग्राफी, देन ठीक है परस्यू, बट वीडियोग्राफी में आई ऑलवेज फील कि कैमरा इज़ नॉट द मेन थिंग, इट इज़ द मेन थिंग इज़ स्टोरी टेलिंग। सो आई हैव डन प्री वेडिंग शूट्स इन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, जिसमें मैं सिर्फ आईफोन से ही पूरा शूट करके आया हूँ, बिकॉज मुझे ईज़ और ज़्यादा लगता है। मतलब एक कोई अगर कपल एक अच्छा वॉक ले रहा है और मैं अपना कैमरा निकालूँ, फिर लाइट निकालूँ, फिर गिम्बल बैलेंस करूँ,
उतने वो मोमेंट चला जाएगा। और आजकल फ़ोन इतने अच्छे हो गए हैं, सो आई वुड रादर इन्वेस्ट दैट 1 लाख रुपीज़ इन कैमरा। उससे अच्छा मैं एक आईफोन, अच्छा बेस्ट टॉप मॉडल आईफोन लो, 1.5 लाख 2 लाख का आईफोन आता है वो लो। एटलीस्ट उसमें स्पेस हो, 1 TB की स्पेस हो, कम से कम आप शूट कर पाओ। ये मत सोचो कि मेरे आईफोन ही भर जाएगा। आधों के फ़ोन की यही समस्या है। सो 1 GB मतलब 1 TB का अपना वर्जन लीजिए। आईफोन प्रो मैक्स लीजिए। प्रो मैक्स का कैमरा इज़ बेटर देन आईफोन प्रो, दोनों में डिफरेंस है। तो बाय प्रो मैक्स, वो इज़ सफिशिएंट टू डू एनीथिंग नाउ। एक अच्छी ऐप कोई आप परचेज कर लीजिए। प्लीज़ ऑलवेज परचेज वन ऐप फॉर वीडियो एडिटिंग, बिकॉज उनके एसेट्स होते हैं, जैसे उनके फॉन्ट, उनके ग्राफिक्स, वो आप फ्री में कितना डाउनलोड करोगे बार बार। तो मैं फिल्मोरा यूज़ करता हूँ। फिल्मोरा इज़ अ वेरी गुड ऐप, पेड है बट अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो आप शुरुआत मोबाइल से ही करिए। स्टार्ट मेकिंग रील, स्टार्ट मेकिंग स्टोरी। अपने वीडियो मोबाइल से ही शूट करना शुरू करो, ताकि आप गेट टू नो व्हाट इज़ फ्रेमिंग। फ्रेमिंग पहले जानिए, उसके बाद टेक्निकलिटीज़ अपने आप आ जाती हैं। यूट्यूब का एक वीडियो देखेंगे 1 घंटे का, आप समझ जाओगे। आजकल आदमी नया कैमरा लेता है, वो कुछ सीखता नहीं, ट्यूटोरियल खोलता है सबसे पहले, 1 घंटे का वो देखता है और सीख जाता है। बट द ओनली पॉइंट इज बाइंग अ कैमरा। आपका पर्पस क्या है? योर पर्पस इज टू, अगर वीडियो का शौक है तो स्टार्ट विद एन आईफोन फर्स्ट रादर देन बाइंग अ बिग कैमरा। ये मेरा सजेशन है। Okay. Thank you so much, sir, for Most welcome. having us, and it was an honor. थैंक्स टू यू फॉर बीइंग सच अ गुड होस्ट। मेहनत करते रहो, देयर इज नो शॉर्टकट। और हम भी अभी कर ही रहे हैं, और करना ही पड़ेगा। हमारे बाप दादा करते आए हैं, तो हमें भी करना है, और करना ही करना है। देयर इज़ नो एंड टू इट। यूट्यूब पे बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। किसी को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। सबको सिर्फ और सिर्फ गॉसिप, मीम्स और वो देखने हैं। तो अपना कंटेंट को आप ज्ञानवर्धक रखिए, लेकिन उसको ज्ञान से हटा के थोड़ा फनी वे में समझाइए। दैट इज़ माई पॉइंट, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद।